IVM. Close your eyes for a moment and imagine. What would you be doing today had it not been for your day-to-day responsibilities of meeting work deadlines and making sure your family is financially secured? Would you have been a footballer, kicking the ball around on those grassy grounds? Or would you have been an artist, sitting near a window overlooking the hills as you paint away? Maybe you crave to be a photographer. But here you are, framing a picture of the life you wish you had. But this can still be a reality. करो पूरे अपने इरादे, अपनों से किए सभी वादे. SBI Life अपने लिए, अपनों के लिए. To know more about our insurance plans with wealth creation, log on to www.sbilife.co.in. IRDAI registration number 111. This is Storytellers and Storytellers live on tape. You're listening to me, Vineet Kanabar, on the IVM Podcast Network. It is March. March means it is the month of Women's Day, and we are very simple people. So if it's Women's Day, we turn it into Women's Month. All this month, you will hear from female creators across genres, across the spectrum. We spoke to Usha Uthup on the first episode, couple of episodes, I think, of this month. And on this episode, we have two smashing gaming creators, gaming women creators who are taking the internet by storm. Please give a warm Storytellers welcome to Konkana, also known as Mystic Ignite, and Rogstream. Rogstream, do you go by Annie or do you go by your given name? Annie, you can call me Annie. You can call you Annie, right? But Aparna Shukla. Aparna Shukla. कोई बुलाता है भी Aparna? नहीं, तभी तो बोल रही हूँ Annie बोलो. मम्मी पापा क्या बुलाते हैं? मम्मी पापा कुछ और ही बुलाते हैं, वो मैं बताऊंगी नहीं. क्यों? Nickname reveal. Actually, पापा मुझे छोटे से मतलब कुछ ऐसा चुलबुली सा नहीं है, वो घर पे बुलाते हैं, मैं सच में नहीं बताना चाहती हूँ. मम्मी मुझे बिटिया बोलती है. बिटिया? That's a बहुत ही sweet name है. कंगना, आपके घर पे क्या बुलाते हैं? Oh, I have a bunch of names. So my nickname is actually Putuka, Okay. which in Assamese means like you can see my face, right? It's Right. kind of round and chubby. So, so it's like that, Putuka, but that is also Maina. So depends on the situation. She'll call any of those. Love it. Have you revealed this on your channel? I think some of them knows, like my true supporters, like very old supporters. Some of them knows, but I don't say it often. Now I'm going to be on every single one of your streams and be like, Putuka. I'm joking, obviously. Thank you so much, Aparna and Konkana, for joining us on this episode of Storytellers. Man, girl game streamers are killing it, right? Are Yeah. absolutely killing it. You guys are the next generation of creators. You are creating content by streaming your life and sharing your life and your opinions and your thoughts with your audience. आप लोग जो कर रहे हो, इसको समझने में ही कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लग जाता है. तो शुरू से शुरू करते हैं. Let me ask you to give us a background of who you are. आप कहाँ से आते हो और अपने stream and we'll build up to how you got to streaming, right? We'll start with Aparna. Aparna, give us a quick introduction to you and Rogstream. For me, मेरा नाम वैसे अपर्णा शुक्ला है. मैं बहुत ही छोटी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी. और अगर मैं मेरे पेज की बात करती हूँ तो हमने अपनी पढ़ाई के साथ साथ इस पेज को बनाया और फिर ग्रो करा. छोटा सा. राइट. तो आपने ऐसा कहा कि मिडिल क्लास फैमिली थी, अब क्यों नहीं हो? अभी क्योंकि 4 साल पहले मतलब ऐसा था कि हमारे पास एक छोटा सा मतलब कैमरा लेने का भी वो नहीं था, हमारे पास अमाउंट नहीं था. फिर ये पीसी भी हमने बिल्ड किया था, तो उसके लिए हमने पापा से सब बोला कि पीसी लेना है. तो पापा के पास इतना पैसा नहीं था और पापा से बोला तो पापा ने पूछा कितने का है. तो हम लोगों को लगा कि वो 70,000-80,000 में मिल जाएगा. फिर इतना बोला तो पापा ने ये सोचा कि हम अपने बच्चों को कभी कुछ खिलौने ऐसा कुछ नहीं दिया है, इतने दिन में बच्चे मांग रहे हैं तो करते हैं. तो उन्होंने मुझे 80,000 उन्होंने मुझे दिया ऐसा कुछ. और फिर
बाकी का अमाउंट फिर हम लोग दिल्ली पहुंचे लेने के लिए, तो वहां पर पैसे नहीं थे हमारे पास खरीदने के लिए, तो फिर पापा ने वहां किसी अपने रिलेटिव से बोला और फिर उन्होंने हमें पैसे बाकी के दिए और फिर तब हम ये पीसी लेकर आए थे। जबरदस्त, आपके पापा को सल्यूट कि ये फोरसाइट और ये डिसीजन लेने में उन्होंने आपके साथ ही। वेर आर यू, आप कहाँ से हो? आई एम फ्रॉम कानपुर, उत्तर You're from प्रदेश। Kanpur, right? And you've been streaming for 4 years, 3 years? 3 years, हाँ 3 4 years. years कह सकते हैं, इस साल 4 year कंप्लीट हो जाएगा मेरा सितंबर, अभी 3 year कंप्लीट किया है मैंने। बहुत ही ब्रिलियंट। और कितना ऑफन स्ट्रीम करते हो? ऑफनली मैं 5 to 6 hours स्ट्रीम करती हूँ Every day. एवरी डे। Every day. Fantastic. Let me bring Kankana into this. Right, Kankana, quick introduction. We already know you're from Assam. Which part of Assam? I'm from Guwahati. So Right. Guwahati, there is also this thing. Some people call it Guwahati, some people call it Guwahati. So I'm from Assam and I live with my mother. So I started when I was really young. Actually, there is a huge festival here in Assam, Bihu. I think Right, of most course. people know, yeah. So during Bihu, we always go to our nanny's house or, you know, our grandparents' house or cousin's house, right? So I would travel to like our village and like go to Golaghat. So that is this place. So I would go there and we would meet up with all of our cousins. Everybody is like young, very little, you know, and that was one PC. I think one of our elder cousin had one PC. So we would go to his house. Everybody would sit on one chair, like, you know, pushing each other to play one game. So that's how I started basically. But then I lost touch for a few years. But then soon my mom bought me one small laptop. Also, you know, because of the state board, when you pass your matriculation exams, you get one laptop. So there was Right. also that thing. So I officially started gaming on those small laptops. But when I started streaming, that's when I needed a proper gaming PC. And also I did not have the gaming PC. And of course, even Aparna knows gaming PC costs a lot. So I had to buy second-hand gaming PC. That too, my mom bought it. It cost me, I think, 50K or something. And I used to stream there. And there is always an issue every single day because it's an old PC, right? Right. So that's how I started. Now I have my own PC that I bought myself. And how long have you been streaming? It's going to be 4 years this year, I think. So you both started at around the same time. I Oh, how think. wonderful. Yep. How wonderful. Yeah. Before we go into more details about streaming, I want you to both share the story behind your gamer tag. We'll start with Kankana. Why are you called Mystic Ignite? So I have always been a fan of like mystical things, you know, anything fantasy related. I love it, the fantasy world. So I was already thinking about the mystic word. I really love the mystic word or mystical, you know, the whole world word. So I was like thinking about it, but I could not come up with a name. So I asked one of my best friends. So I was like, hey, I have this name like Mystic, but I can't make it like a proper name. I don't know. I don't think Mystic itself will be like a very good name, but I want to add something to it. She was like, let me think about it. And I told her that I want something that reminds me of power. So she was like, okay, let me think about it. And then she suggested Mystic Ignite. And I was like, Ignite and, you know, all the burning and all this stuff. I was like, yeah, I really love that. And I kept it. I love it. So, Love it. yeah. It's a great name. It's very, very sort of Dota, Mobile Legends sort of space. Yeah, you know, I love the fantasy world. I am obsessed about it. So Love it. How about Rogstream? How did you come up with that? एक्चुअली ये जो रॉग नेम है ये मेरे भाई का है, मतलब जो मेरा छोटा भाई है वो बहुत ज्यादा गेम खेलता था, उसके जो दोस्त लोग थे ना वो लोग ये रॉग वर्ड यूज करते थे उसके लिए, मतलब उसको रॉग बोल के बोलते थे, बट ये लोग एक गेमर गैजेट्स के लिए रॉग ब्रांड है, सो हमने इसको रिपब्लिक ऑफ गेमर्स नाम देकर अपना चैनल का नेम दिया. Fantastic. And what was the first game that you guys really got into streaming? First game is my PUBG. Oh yeah. My first game are like a lot of games. I think World's Worm Party was the one game that I started with, then Call of Duty and all that stuff. But my streaming, I started with PUBG Mobile. Right. And what other games have you guys gone into since then?
I play various games. I am very versatile. So, and I really like to change games, and like I like to try out new things. So, Mhm. of course, I play Dota 2, Valorant, Apex Legends, and cricket sometimes. Taken, Mortal Kombat. I play all sorts of games. So, Love yeah. it. Love it. How about you? बट मैंने ज्यादा गेम्स नहीं खेले हैं, एज मैंने बताया कि मतलब मैंने ये गेमिंग, भाई ने मुझे सजेस्ट किया पबजी। मतलब पहले तो मैं स्टडी कर रही थी, स्टडी करते करते जो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होता है ना, उसको रिलीज करने के लिए भाई ने गेम दिया मुझे कि खेलो, क्योंकि बिकॉज इतना फोन वगैरह नहीं था तब हमारे पास। तो उसके फोन में मैंने कैंडी क्रश खेला। फिर मैंने थोड़ा मतलब ट्यूशन व्यूशन लेकर फिर मेरे पास जो फोन आया, तब फिर मेरे पास रेडमी नोट 4 था। Mhm. तो उस पे फिर मैंने ये पबजी आया तो भाई खेलता था, तो भाई बोलता आ जाओ तुमको भी खिलाते हैं, तो हम उसके साथ बस ऐसे ही खेलने लग गए। तो ये हमारा बस यही एक गेम था। और फिर ऐसा उसी टाइम पे मतलब 2 महीने खेलने के बाद ही मोबाइल पे ये स्ट्रीमिंग की दुनिया भाई ने देखी, तो भाई ने सजेस्ट किया कि आप इस पे स्ट्रीम करो, लोग इस पे इस गेम को लेके स्ट्रीम कर रहे हैं, आप खेलते हो तो यहाँ टाइम स्पेंड करने चाहिए, वहां पर स्पेंड कर दो, ऐसा तो कुछ शायद यूटिलाइज हो जाएगा आपका टाइम। सो बस इस बेस पे हमने स्ट्रीमिंग स्टार्ट की थी। बाकी मुझे स्ट्रीमिंग के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। और अभी क्या है, अब तो लाइक गेम्स है तो अभी खेलते रहते हैं हम लोग, चेंज करते रहते हैं, स्टोरी मोड गेम्स, पीसी गेम्स, कुछ गेम्स ऑफ मतलब गॉड्स ऑफ वॉर या टॉम राइडर, लाइक रेजिडेंट एविल, ऐसे कुछ गेम्स खेलती हूँ। ये पार्ट ऑफ टाइम, बट ऑन स्ट्रीमिंग टाइम मैं सिर्फ पबजी ही खेलती हूँ। मतलब मैं सिर्फ याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जब छोटा था तो मैं भी बहुत वीडियो गेम खेलता था। मैं अभी भी मतलब ऑन एनी मैं गिवन सफर किया। वीकेंड यू नहीं यार, मैं बहुत स्पोर्ट्स खेलता था, स्पोर्ट्स गेम, अच्छा, तो ओके। फीफा, FIFA. क्रिकेट, और अभी भी फॉर्मूला, हाँ। मतलब हाँ, अगर मुझे वीकेंड पे फ्री टाइम होता है तो मैं ऐसे 3 घंटा फीफा खेलता हूँ। मेरी बीवी मुझे मारने पे दौड़ती है कि क्या कर रहे हो, कुछ कर लो लाइफ के साथ, ऑब्वियसली। बट यार ये बात एक जरूर है, मतलब मैं जब छोटा था और इंटरनेट पे या गेमिंग पे मैं टाइम स्पेंड करता, तो मेरे पेरेंट्स बड़ा स्ट्रेस करते थे कि क्या कर रहा है, कुछ कर ले, पढ़ ले, काम कर ले, कुछ कर ले। तुम्हारे पेरेंट्स क्या बोलते जब जब स्ट्रीमिंग शुरू किया तब, मतलब और एंड आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो बिकॉज आप दोनों ने डिफरेंट एज ग्रुप में शुरू किया स्ट्रीमिंग, राइट? इफ आई एम राइट, कंकना स्टार्टेड एट अराउंड 18 19 possibly, and Aparna, you started at 24 25, 25, yeah. 24। सो तो क्या बोलते थे पेरेंट्स? पहले तो जब ये मोबाइल पे कहते, एक्चुअली मेरे यहाँ मतलब पापा मेरे ये सोचते थे कि मेरे बच्चे खुश रहे, सबसे पहला उनका एम ये था। तो देखते तो वैसे थे ही कि हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इतना ज्यादा कुछ बोलते नहीं थे। बट जब ये पबजी खेला ना, तब तब तो लिटरली बहुत डांट पड़ी है। हम्म, तब तो बहुत डांट पड़ती थी, क्योंकि गेम खेलते खेलते कब 1 बज जाता था रात का, ये पता नहीं चलता था। बिल्कुल। तो इसलिए फिर तब थोड़ा सा डांट पड़ती थी। और फिर उसके बाद जब ये स्ट्रीमिंग करने लगे, और मुझे स्ट्रीमिंग करने में मुझे मतलब 5-6 मतलब थोड़ा 15-20 दिन ऐसा टाइम लगा था कि मेरे को जो जिस प्लेटफॉर्म में स्ट्रीम करती थी वहां के जो कुछ होते हैं ना, टारगेट्स होते हैं आपको कंप्लीट करने होते हैं, देन यू विल बी मोनेटाइज्ड। हम्म, सो वो जैसे अचीव किया ना, हम लोग इतने ज्यादा खुश थे, तो मेरे पापा सब भूल गए। कहते बच्चे खुश है, ठीक है, कोई बात नहीं। उनको नहीं पता था कि अगर आज उनसे कोई पूछता है क्या यहाँ पे, जैसे 1-2 बार शूट के लिए ऐसे फेसबुक गेमिंग की तरफ से एक शूट हुआ था हमारा मेटा का, तो वहां से भी टीम आई थी, उनसे पूछा गया ना, तो उन्होंने यही बोला था, मैंने तो खिलौना खरीद के दिया था, मुझे नहीं पता था मेरे बच्चे इस खिलौने का इतना अच्छे से यूज करेंगे। उनको अभी भी मतलब ये खिलौना है उनके लिए। और खिलौना ही तो है, मतलब खिलौना है, बट आप तो लिटरली खिलौना ही हो गया। मतलब अगर रॉजर फेडरर भी टेनिस खेलता तो वो खिलौना ही खिलौना ही है। है ना? तो बहुत बहुत ही बढ़िया। I love it, and salute to your father for for seeing this, and I think this is the second time we're saying, giving a shout out to Aparna's father. Maybe we should have him on an episode at sometime soon as well. What about you, Konkana? What was the reaction from your mom or your family? So my mom is a single mother. She Right. works hard to provide for me, and she bought me the second-hand PC, like I said, right? And she is always really encouraging. Single mothers are really empowering. They will be like, do it. And if it doesn't happen, it doesn't happen. But if something happens,
then great. So she was like, I told her I want to try out this new thing, streaming. And like some of my few gaming friends suggested me that I should try streaming. So I was like, I told her, and she was like, okay, fine. And I told her I need a PC, but she managed and got me the secondhand PC. And I started streaming. And it was okay. I don't think she was mad about it because she was really encouraging. But if I spend too much time, like I can't make it my whole day, right? I also have to keep some of the time for my studies and my extracurricular activities and all those stuff. So she was like, keep the balance, also study. If you keep your studies properly, then there is no issues from my side. So that was always a priority for her. So of course, I like to think I'm a good student, like average good, but then I'm very obedient and very serious. So she was okay with it. She knew me that I won't be that, and I won't take the sidetrack. I would be balanced. So she was like, okay. Love it. And what did, like, outside of your parents, what did the rest of the family say? Rest of the family was a bit concerned because they were also concerned because I'm the only child. They were like, she's providing for you. You need to do something good, right? You need to make your mother proud. So that was always this pressure. They were like, it's okay if you're playing a game, it's okay, you're streaming, but also don't forget to study. They are also very strict about it. At first, they were a little bit concerned, but when they knew that I started earning and I can provide for myself, and that's when they were like, okay, she's doing something good. She is also keeping the balance with her studies. Her results are perfectly fine. So they were like, okay, it's fine as long as you keep your life balanced. Love it. And what do they say now? Now that you've been doing this for 4 years, to the two of you, right? What do they say now? Are they like, boss, you're doing something that none of us understand, but you're doing it really well? Or they're still like, okay, but still keep your balance, think of another option in your career? What is the reaction now? I think that is that still they think I should keep a balance for my relatives and other family, friends and stuff. A few people, they think I should keep a balance because, for I think most middle class Indians, I think education is really important. They really prioritize education. So of course they would prioritize education first and then my career option. But then they are also encouraging. They won't say that don't do it. They would be like, if there is an opportunity, go for it. Love it. And Aparna, I want to ask you, आप घर में बड़े हो, right? और आपका एक छोटा भाई भी है. तो दो छोटे भाई. Oh wow! So two people to have a bad influence on. Right? But what do your parents say? Like, are they also streamers now? Your brothers? No. Actually, मेरे से जो छोटा है, वो क्या है? क्या भाई मैं भूल जाती हूँ. भाई तुम्हारा क्या? एक्चुअली उसने बीटेक किया है और फुल स्टैक डेवलपर है. इंजीनियर. या इन पुणे एलियंस. सो उसका ये सब आइडिया रहता है और वही मुझे सजेस्ट करता है मुझे सेकंड थिंग क्या करनी है, कल मेरा क्या स्केड्यूल होगा, मुझे किस वीडियो पे शूट करना है, क्योंकि मैं और भी प्लेटफॉर्म पे वर्क करती हूँ. नॉट ओनली मतलब ये हमारा मतलब सिर्फ फेसबुक में हमारा स्ट्रीमिंग के साथ हमारे पास वीडियो कंटेंट भी होता है, तो वो भी हमें प्रोवाइड कराना होता है फेसबुक पे. तो उस पे हमें क्या करना है, कैसे करना है, कितना पंक्चुअलिटी से करना है. इंस्टाग्राम वगैरह मैं यूज करती हूँ, तो उस पे भी मुझे वर्क करना है. तो ये सारी चीजें वही मैनेज करता है. और जो छोटा वाला भाई है वो लाइक जैसे अभी ये मीटिंग थी तो वो सारा की ये माइक कैसे, कौन सा, कितना, इसमें बैकग्राउंड साउंड नहीं आना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें छोटा भाई मैनेज करता है. तो ये दोनों मतलब हम तीनों मिलकर ये काम करते हैं. बहुत बढ़िया. ये तो मतलब आप लोग फैमिली अफेयर बना दिया आपने. That's so good. I don't have anyone. I only have my friends. मैं अकेले सब कुछ. Actually, I don't have friends. मैं घर पे ही रहती हूँ. I have my brothers. Actually, brother and उनके भी जो friends है ना, they are also my friends. I don't have my friends. यहाँ पर ही जो कानपुर में हमारा लोकेलिटी है ना, यहाँ पे अगर आप कॉलेज जाते हो तो कॉलेज से सीधा घर आने का, किधर और नहीं जाने का. कोचिंग क्लासेस भी घर पे पेरेंट्स यहाँ पे घर पे ही प्रोवाइड कराते हैं. आप बच्चों को भेजिए मत, क्योंकि ये थोड़ा सा सोसाइटी यहाँ का अच्छा नहीं है, और अच्छा भी है, क्या बोल सकते हैं किसका कैसा है. तो थोड़ा सा समझ के और ये सब चीजें
तो मेरे को पूरी सिक्योरिटी दिया थी 12th तक, मुझे बहुत सिक्योरिटी दी गई है। भैया लोगों के फ्रेंड्स पहुंच जाते थे कॉलेज छुट्टी के टाइम पे, घर आ रही है उसको। सो इतना ज्यादा मेरा फ्रेंड सर्कल ज्यादा वाइड नहीं है। जो थोड़ी बहुत फ्रेंड्स थी शादी हो गई, सब चले गए दूर दूर। और बस मुझे ये है कि मुझे मेरे अंदर भाई और फ्रेंड्स दोनों भाइयों के रूप में मिल गए। बहुत ही बढ़िया. I want to ask you this, and this is basically a question to both of you, really. Online environment for girls, I mean, generally भी इंडिया में safety environment for women थोड़ा नहीं, काफी डाइसी है. काफी जगह पे women have to generally be more careful than men, especially online भी ये होता है काफी, right? There is a lot of abuse. There are people who are, leaving unwarranted comments. They will stalk you on profiles and stuff like that. जब आप शुरू कर रहे थे, when you were starting out as streamers, और आज इसमें क्या फर्क है या क्या ओपिनियन है? how do you tackle these? I think जब पहले शुरू किया था, of course we were inexperienced. Right. We did not know how to handle such comments. वो भी काफी rarely आते थे, and there is always this option to block them and ban them from my stream. But फिर भी, when I started, I was a little bit inexperienced in that sense. I did not know how to take it. I took it a little bit hard, I think. But with time, I have learned you don't need to take everything that seriously. There will be naysayers, So I like, fine, you can have your opinion. That's your choice, but you can't come to my stream and if I don't agree with your opinion, you can't be on my stream. So I think in this stage, I am very chill about it. Right. How about you, Aparna? एक्चुअली जब भी मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे लिए तो सच में ये बहुत थोड़ा नर्वस हो जाती थी. फर्स्ट एक्चुअली ऐसा था, मैं स्ट्रीम कर रही थी फर्स्ट डे और एक कमेंट आया, तो मेरा तुरंत जो चेहरा में स्माइल था वो गायब, थोड़ा नर्वस. हाँ, तो ऐसे भाई मेरे को इधर से इशारा कर रहे हैं, ऐसे ही इशारा कर रहे हैं ऐसे इशारा कर रहे हैं मेरे को कि इग्नोर कर दो उसको. ठीक है, भाई ने फिर तुरंत, मैं थोड़ा सा फिर घबराई. जो पहला दिन था, मतलब उसमें 15-20 मिनट ही स्ट्रीम हुआ, मेरा हालत खराब हो गया था क्योंकि मुझे इतना नहीं पता था. फिर दूसरे दिन मतलब फिर भाई ने थोड़ा सा स्टार्ट बताया कि आपको दीदी ऐसे ये सब चीजें इग्नोर करनी होगी, ऐसा होगा और ये भी, इसके आगे भी बहुत कुछ हो सकता है, तो ये सब चीजें आपको हटाना है दिमाग में. अगर आता है आपको नहीं पढ़ना, आप मत पढ़ो, मत देखो. फिर थोड़ा सा तब भी थोड़ा सा फील होता था, तो भाई फिर कमेंट को रिमूव करता रहता था दूर बैठ के, हम अपना स्ट्रीम करते रहते थे और इस तरह से ऐसे चालू हो गया. अभी फिर जैसे जैसे टाइम जाता गया, फिर उसके बाद तो हम सीख जाते हैं ऑब्वियसली. जैसे कंगना ने कहा कि फिर तुम्हारा जैसा मर्जी वो लिखो, हमारा जैसी मर्जी हम वो पढ़ेंगे. कई बार तो मैं तो इतना मस्त हूँ ना, मैं तो पता है कोई चैट आता है तो तुम नूब हो, तो हम उसको बोल देते तुम नूब हो. It definitely makes your skin thicker. I love it. I'm so glad. like कभी कुछ आया, तुमसे ना हो पाएगा. I was like, हमसे हो पाएगा ना हो पाएगा, हमसे हो पाएगा ना पाए, तुमसे भी नहीं हो पाएगा. एटलीस्ट मेरी स्ट्रीम पे इतने लोग बैठे हैं, तुम यहाँ मेरी स्ट्रीम पे बैठ के जवाब दे रहे हो. नहीं, मुझे बड़ा, और सच बताऊं, जब भी आप कुछ देखिए, हर किसी इंसान की अपनी मेंटालिटी होती है. कुछ इसको निगेटिव वे लेते हैं, कुछ उसका रिप्लाई देते हैं, कुछ होते हैं यार एनी सॉरी जस्ट चिल, मैं मजाक कर रहा था, कुछ ये भी लिखते हैं. तो ये सब चीजें हैं. मैं तो जितना होता है ना, मैं मेरी ऑडियंस को हमारी मतलब पॉजिटिव चीजों की तरफ मोल्ड करना चाहती हूँ और करती भी वो कोशिश ये करती है कि अगर कोई 4 लोग मुझे गलत लिख रहे हैं, अगर उन्होंने कुछ अब्यूजिव या कुछ वल्गर कमेंट भी किया है, देन तो भी मैं कोशिश करती हूँ, अगर मैं देखा है तो एक बार उसका कुछ ऐसा रिप्लाई देती हूँ कि वो खुद मोल्ड हो जाता है. तो ये मैं मेरे इस चीज को हमेशा होल्ड रखती हूँ मेरी स्ट्रीम के टाइम पे. और अगर कोई नहीं मानता है तो उसके लिए मेरी ऑडियंस है ना, वो काफी है. मेरे पास मॉडरेटर नहीं रखे मैंने स्ट्रीम पे. एक भी जो ऑडियंस है ना, वो तू निकल यहाँ से निकल, उसको इतना सुनाते वो खुद ही चला जाते, क्या बोले. मतलब ये भी सही है, आपके फैंस में इतनी फीलिंग है कि आपके लिए वो वहां पे मॉडरेशन का काम भी कर देते हैं. दैट इज सच अ पावरफुल
community sentiment, right? Like people love their creators so much. जब भी नहीं होता है उनसे, जब भी वो जैसे लाइक लोग पीसी से भी स्ट्रीम देख रहे हैं तो वो कंट्रोल भी करने लगते हैं, चार्ज पे पता है नहीं इसको ब्लॉक कर दो, इस नाम वाले को ब्लॉक कर दो। मेरे को भी आता है जब देखते हो अच्छा ये ज्यादा हो रहा है, समटाइम्स मेरे को जितना गुस्सा आता है उससे कई गुना उन लोगों को गुस्सा आता है। वाह I mean that's also मतलब credit to you guys, right? क्योंकि आप इस टाइप का एंटरटेनमेंट अपने फैंस को प्रोवाइड करते हो, that they are there to protect you. It is a very important thing, right? And I'm so glad both of you said that initially, while it was a bit stressful, you have both learned how to deal with it and grow a thick skin. I'm going to take a quick break and we'll come back on this episode to continue our chat. Don't go anywhere. This is Storytellers and Storysellers. We're talking to Rogstream and Mystic Ignite about being girl streamers and the trials and tribulations and the triumphs of streaming gaming content in India. Back after these messages on this episode. Don't you think that if everyone around you is getting smart, you better be smarter? Hey there, I'm the traveling professor Siddharth Deshmukh and I'm back with season 2 of my podcast to make you smarter. Smarter with Sid. What's this season's focus about? Well, it's about 10-minute nuggets that will make you stand out at work. It's time to go from smart to smarter. Tune in every Tuesday and Thursday and become smarter with Sid. We're back. This is Storytellers and Storysellers. We're talking to Rogstream and Mystic Ignite about being girls game streamers in India. Before the break, we were talking about trolls and abuse and how both our guests have developed a thick skin, learned how to deal with it, and are also part of very strong fan communities who come to their defense. Let me ask you both about these communities, right? जैसे मैंने कहा था इस conversation के शुरू में, gaming streaming समझता नहीं लोग. Right? I mean, people understand comedy sketch क्या होता है या लोगों को वीडियो समझता है, right? कि हाँ हम 6-7 मिनट का 8 मिनट का वीडियो बनाएंगे, उसमें ऐसे जोक्स होंगे, पंच लाइन होगी और एंडिंग होगा, स्टार्ट मिडिल एंड पर. लेकिन स्ट्रीमिंग का तो कोई ऐसा सरपैर होता है, राइट? देयर इज नो अंडरस्टूड वे ऑफ स्ट्रीमिंग. अब तक मतलब दुनिया में लाइव 2 ही चीज होती, न्यूज और स्पोर्ट्स. कोई तीसरी चीज लाइव होने का कोई गुंजाइश नहीं थी, जरूरत नहीं थी. पर अब फेसबुक, YouTube ऐसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ we have streaming emerging as a next step and everybody is doing it, right? आप लोग जैसे young creators in India से लेके top level footballers तक सब लोग गेम स्ट्रीमिंग कर रहे हैं. मतलब अग्वेरो से लेके अल्फोंसो डेविस से लेके नेमार से लेके आप लोग सब, all of you are part of the same universe in that sense. But help us understand this बहुत ही simple भाषा कि ये क्यों देखते हैं. And maybe you both have different answers, maybe you have similar answers, but I want to know from your point of view that why do you think people tune in to watch you streaming for 5 hours, 6 hours in a day? And we'll start with Mystic. So, you know, just like you watch a video, it's very entertaining for you, right? To watch someone do something, it's like, oh, what is that person gonna do now? It's like interesting. And to all the game enthusiasts, of course they love gaming, and when somebody is playing the game that they love and streaming it, of course they will tune in, and if they like the person who is playing the game, they will stay there and they will keep on supporting you. So there is that thing. Definitely I became a little bit blank. So I tend to forget the questions sometimes. The question is, why do people come to you? It happened to me on multiple occasions, you know. So I go in such detail, then I forget the question. That's perfectly all right, which is why we are on audio, not on live streaming. इसमें आप पीछे जाके फिर से question सुन भी सकते हैं. हाँ. So I think it's same as watching a video. You know, they like to watch your expressions, your genuine reactions. I think it's all about the genuine reactions and how you interact with other people. And of course, when you're live and you're talking with someone on like during your live stream, of course, that is like real conversations that's happening between two persons, right? Absolutely. So of course, they love that. I think one is genuine conversations and reactions. I think those are the two things, and the game, of course. So those 3 are the main things why people love watching streams. Love it. Live streams. Love it. Aparna, what about you? Same. सबसे पहले तो जैसे कि मैं एक चीज और इस पे ऐड करूंगी कि जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, आप देखते हो लाइव,
वो आप इसलिए देखते हो कि वो आपको उसमें इंटरेस्ट है। सबसे ज्यादा लोग क्रिकेट पे इंटरेस्ट है तो वो क्रिकेट का लाइव देख रहे हैं, जिसको जिस गेम पे। तो अभी क्या है, ई स्पोर्ट्स, हमारे पबजी जब आया हमारे इंडिया में, तब से ई स्पोर्ट्स हमारे इंडिया को पता चला है कि ये क्या है गेमिंग सबसे पहले। तो जब भी हम हम गेम कोई खेल रहे हैं, अगर उसको पता है कि हाँ यहाँ पबजी है और लाइव खेल रहे हैं, तो दे विल फील दैट दे आर प्लेइंग इन आवर प्लेस। एक्चुअली उनका एक्सपेक्टेशन ये होता है, और वो कमेंट्स आते हैं फिर, अरे तुमने ये नहीं करना था, तुमने ये करना था। लाइक तो वो ये फील करते हैं कि लाइक वो ही गेम खेल रहे हैं। सो ये सोचकर भी वो स्ट्रीम करते हैं और देखते हैं, और वो खुद पे बहुत अच्छा मतलब फील करते हैं। कई बार तो ऐसे भी होता है, कुछ लोगों का कहना ये भी होता है कि आप एनी कब मैंने पहले गेम खेलता था, मैं बोलती हूँ गेम खेलता था क्यों, अभी क्यों नहीं, अभी आपकी स्ट्रीम देखता हूँ ना। एक कोई मतलब एक तो लिटरली मैं उसको इतना अच्छे से आती हूँ, 2 साल से कंटिन्यूअसली आ रहा है। वो पहले मेरे साथ खेलता था और अभी सिर्फ स्ट्रीम देता है, 3 घंटे बैठ के पूरा स्ट्रीम देखता है वो। परमानेंट उसका कमेंट आता रहता है, गाते रहे। मैं कहेंगी आजा खेल ले, नहीं आ रहा, नहीं अब छोड़ दिया, अब जॉब कर रहा हूँ, तुम्हारी स्ट्रीम देख के मस्त मजा आता है, मुझे लगता है मैं खेल रहा हूँ। सो ऐसा ये चीज भी एक है कि लोगों को इंटरेस्ट रहता है स्ट्रीमिंग में, तो हमें भी मजा आता है। और ऑब्वियसली आपका रिएक्शन सबसे मस्ट है। कल मैंने क्या किया, मतलब कल लास्ट नाइट मैंने गंगूबाई का गेटअप लेकर स्ट्रीम करी, तो लोगों ने इधर देखा, चैट मतलब मेरा जस्ट थंबनेल देखा, दे कम टू माय डिस्कॉर्ड सर्वर एंड मतलब उनका रिएक्शन ऐसा, मुझे लग रहा था कि वो ये क्या रहा। अच्छा, अगर मैंने कभी ऐसे किया, ऐसे लाइक मैं मर गई तो मैंने ऐसा कुछ भी बोला या कुछ रिएक्ट किया, तो मेरे खुद के टीममेट्स पहले अपना गेम में कहीं सेफ जगह बैठते हैं, मेरी स्ट्रीम ऑन करते हैं, देखते हैं, हाँ एनी ने ये रिएक्शन दिया है, कितना मजा आ रहा है। मतलब वो इस चीज को एंजॉय करते हैं कि हमने ये क्या किया है। ऐसा कई बार ऐसा हो जाता है ना, गेम में आपको पता है आपको क्या करना है, और आप उसमें फुलिशनेस आपकी दिखा देते हो कि हाँ भाई हम बहुत बड़े वाले बेवकूफ हैं, पता था ये नहीं कर रहे फिर भी कर रहे हैं। तो ये चीज देखने में इतना मजा आता है लोगों को कि यानी क्या कर रही है। तो ये चीजें हैं बस, कि स्ट्रीम देखने में लोगों को मजा आने लग गया। बहुत से यार। मुझे एक चीज और बताओ, मतलब जिस टाइप से आप लोग कंटेंट भी क्रिएट करते हो, ऑलमोस्ट रोज करना पड़ता है। अगर मैं इसमें वीडियो का कंपैरिजन ड्रॉ करने जाऊं या म्यूजिक का कंपैरिजन ड्रॉ करने जाऊं, रोज अगर मैं किसी को कहूं नया गाना लाके दो, या रोज अगर मैं किसी को कहूं कि नया वीडियो बना के दो, तो वो इम्पॉसिबल है, मुझे पागल समझेंगे। ऐसा नहीं होता है, क्रिएटिविटी इस लेवल पे नहीं होती। बट आप लोग उस एक्सट्रीम, उसके दूसरे एक्सट्रीम पे हो। आप लोगों के पास रोज नई कुछ क्रिएटिविटी है, रोज एक नया कुछ रिएक्शन है, रोज एक नया कोई गेटअप है, या रोज एक नया कोई गेम है। इसमें क्या प्रोसेस जाता है सोचने में, प्लानिंग में, कि आप इस तरह से इसे स्ट्रीम करोगे, या दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट, और दिस इज हाउ माय ऑडियंस इज एक्सपेक्टिंग अस टू ब्रिंग समथिंग न्यू और समथिंग फ्रेश। कैसे प्लान करते हो? मैं प्लान नहीं, मैं सरप्राइज देती हूँ। अरे वाह, खुद को भी? हाँ, खुद को तो नहीं कहूंगी क्योंकि मुझे तो पहले से प्रिपेयर होना है। मुझे तो पहले से प्रिपेयर होना होता है, ऑब्वियसली ऑडियंस को, क्योंकि पता है मैं जब भी ऐसे लाइक कभी हॉरर गेम खेला तो वो हॉरर गेटअप, ये देखो ये पीछे से गया है, ये सिर्फ गेम खेलने के लिए गया है। अच्छा भाई मेरा। सो इसका क्या है, मतलब हम लोग जब भी ऐसा कुछ करने वाले होते हैं तो ये मतलब एक आइडिया होता है कि करना है आज। तो मुझे लोग बोल रहे हैं एनी तुमने कभी साड़ी में स्ट्रीम नहीं करी है, लाइक गर्ल हूं ना, तो एनी आज तुमने मेकअप ज्यादा लगा लिया है, एनी आज ये हो गया है, एनी कभी साड़ी में कभी सूट पे स्ट्रीम करो। तो आई वाज लाइक, तुरंत उन्होंने कहा तुरंत करना, इट्स नॉट गुड ना। राइट, ऑफ कोर्स, थोड़ा सा सस्पेंस, और ये अचानक से आया, उसका रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। तो जेन्युइन लगना चाहिए, ऑथेंटिक लगना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने बोला और मैंने कर दिया। मतलब थोड़ा वो क्या कहते हैं, नाचने वाला मंकी वाला फील नहीं कि अरे जो ऑडियंस बोलेगी, ऑडियंस आप जो बोल रहे हैं हम सुन रहे हैं, हमें जब सही लगेगा तब करेंगे। मतलब ये होता है कि उनकी बात भी सुननी भी है और हमें हमारे अकॉर्डिंग करना है। बिल्कुल, उनको भी उनका जो विशेष हैं वो हम पूरी कर सके। लाइक बहुत सारे अभी तो ये हो गया ना, अभी तो जैसे ये पबजी और ये बीजीएमआई का थोड़ा सा ये लफड़ा हुआ है ना, तब से थोड़ा सा ये रह गया। नहीं तो मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ बहुत ज्यादा गेम्स खेलती थी, तो उससे भी कुछ नया कंटेंट मिल जाता था। अभी मैं आप गेम्स में थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाता है। जैसे आप गाने की बात करते हो तो ये बहुत अलग हो जाता है एवरीडे गाना लाना। बट गेम का क्या है, आज आपने गेम स्टार्ट करते हो, आप ही है लाइक आपने बोला 3 घंटे में एक ही गेम खेल रहे हो, 1 घंटे में मतलब आप 3 घंटे में आप बहुत सारे गेम्स खेल सकते
खेल देते हैं, है ना? बिल्कुल, तो हमेशा हर गेम, जब एक गेम एक पार्ट में एंड हो गया एक टाइम पे, उसके बाद जब नया स्टार्ट होता है तो वो कुछ नया स्टैट्स लेके स्टार्ट होता है ना, कि लास्ट टाइम ये गलती की थी, इस टाइम नहीं करनी है, तो उसकी जगह पे दूसरी गलती हो जाती है। राइट, बिल्कुल। तो ऐसे ऐसे ये घूमता रहता है और नया नया कंटेंट मिलता रहता है। और हमारे पास थोड़ी सी मस्ती मजाक थोड़ा ऐड हो जाता है, क्योंकि जो चैट होती है ऑडियंस के साथ भी हमें बात करनी होती है, तो हमें थोड़ा सा और मिल जाता है कि हम बातें करेंगे तो कुछ नया होता है। कभी किसी को कुछ बात पे छेड़ रहा है, किसी को किसी बात पे, या टीममेट्स के साथ मस्ती मजाक, तो ये सब चीजें हमारे कंटेंट में ऐड हो जाती है। बहुत ही बढ़िया, वेरी लाइक व्हाट अ नाइस वेल थॉट थ्रू वे ऑफ अप्रोचिंग दिस। आई वांट टू टॉस दिस ओवर टू कंकना एंड आस्क यू द सेम क्वेश्चन. हाउ डू यू प्लान फॉर new stuff coming up on your stream? What is that like for you? So, of course, I don't plan every day, but if there is a special occasion, देखो Christmas आ रहा है, I'll prepare something like maybe a cosplay or maybe not a cosplay, like a Santa hat and specs and all that stuff, So I would surprise them and they would be so happy, And वही कभी कभार viewers के साथ खेल लिया, कभी कभार supporters के साथ खेल लिया, and sometimes I also did that one thing. एक बार मतलब क्या हुआ था, आई थिंक फॉर अ वीक और सो एक शायरी का कुछ मतलब वो हो रहा था, मतलब सब लोग मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं सब लोग आके अपना शायरी बोलते हैं, दैट इंक्लूड्स मी, मतलब इन द शायरी. So everyone is like, हाँ मिस्टेक, आई वॉन्ट वन न्यू शायरी, डू यू वांट टू लिसन. अरे मैंने भी एक अभी सोचा है, दे विल शायरी 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 पूरा चैट में, एंड मैं वो सब कुछ पढ़ती हूँ एंड दे लव इट. सो आई ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग फन during the stream, but mostly genuine रहता है, like it's in the moment, तो कुछ भी आता है दिमाग में तो वो कर लेते हो. And like Annie said, it's very different from music composition and video making, because there you need to think from scratch and like build it up, right? So either at least we have the game to start with, so game रहता है, and then we can move from that. And even with story based games, it's a long game, right? So we can do episode wise, मतलब 1 घंटे का या फिर 2 घंटे का थोड़े देर खेल लिया, we can take a break and then we can continue from the next part. So there is always that option for us. So I think that is the reason we can do it daily. And like she said, strategies, every time we have to bring new strategies and such. So yeah. Love it, absolutely love it. I want to ask you this, continuing that train of thought, right? Like, because what you guys do is also entertainment, and it also has elements of practice that are important, right? जैसे मतलब अगर आप मुझे कहोगे कि किसी को ट्रेन करना है स्ट्रीमर बनाने के लिए, right? एक ऐसा शो भी है, there is a show called Mythic Quest, Raven's Banquet on Apple TV Plus, which is about a gaming company, और उसमें एक ऐसी यंग बंदी होती है जो स्ट्रीमिंग करती है, right? But when I break it down, जब मैं इस आर्ट फॉर्म को ब्रेक डाउन करता हूँ, तो इसमें पब्लिक स्पीकिंग के एलिमेंट्स हैं, इसमें थोड़ा तो मतलब अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए करंट मीम्स और ट्रेंड्स और सोशल मीडिया और लिसनिंग के एलिमेंट्स हैं, गेम्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. तो ऐसा कोई आपने ट्रेनिंग करी कभी, मतलब सीखा कैसे ये सब इतना, मतलब and both of you seem so sorted in your head about what you guys are doing, your communities are growing so well, पर कभी कोई ऐसे प्रैक्टिस करी या कुछ ऐसा सोचा कि this is what we need to learn, so I'm going to practice this, ऐसा कोई टाइम रहा? No, I don't think so. I never practiced. So you're like natural. ये मतलब on the job हमने सीखा है streaming, because and with the new generation, everybody is into memes, and I think everybody is updated because everybody on social media, come on. So I think that comes naturally to us to some point. I never prepared actually. Same here. Same here. I'm so glad you said that, because being authentic and real and learning it the way is the essence of what you're doing, right? उसके मतलब core में तो वही है, थोड़ा preparation है. I think we learn as we go on, and with the public speaking thing, I totally agree. When I first started streaming, you should watch my first stream. My goodness, my camera was like, I was showing my top half of the head, and like I kept on playing like this, and I did not talk, and my friends used to come and like, बात करो, they are saying something in the comments, say something. I'm like, oh yeah, let me wait, then I will read the comment, it would take some time, and then I'll reply. I think वो तो मतलब with experience I have gained to manage both of the things and like communicate at the same time. But my god, it was a disaster when I first started.
Wow. Is that the same story for you, सेम Aparna? सेम सेम एग्जैक्टली सेम. मैं ऐसे गेम खेल रहे तो बस Yeah. गेम खेल रहे ऐसे बस मतलब आप भी इधर मतलब अगर इधर देखना है तो उसके लिए पहले 2 मिनट शांति से बैठने का. फिर भाई इधर 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 से इशारा रहे पढ़ लो, कोई कुछ बोल रहा है. कोई बार मेरे साथ तो ऐसा था कि लाइक कोई कुछ बोल नहीं सकता था तो मेरे पास भाई ना वो एक वो होता है ना, वो पैड टाइप का होता है जो, तो उस पे ऐसे छोटा सा उस पे लिख कर बड़ा बड़ा सा मेरे सामने से खड़ा हो जाता था लेकर कि दीदी ये पढ़ लो. मैं उसमें पढ़ती हूँ, अच्छा ये कमेंट आया ठीक है. ऐसा मेरे साथ तो ये Amazing. भी ऐसा भी हुआ है. ऐसे करके और फिर अब तो सब मैनेज हो जाता है. अब तो खुद ही से चैट भी पढ़ लेते हैं, खुद ही से गेम भी खेल लेते हैं, खुद ही से बकवास भी करते हैं. सारी चीजें चलती है अभी साथ. Yeah. That's epic, yeah. I have two things that I want to ask you, right? How has platform like Facebook, for example, helped you grow over the last few years? एक्चुअली फेसबुक सच में मैं तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म में मैंने वर्क किया है बट लिटरली आई लव फेसबुक गेमिंग. मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला और यहाँ पर मुझे हर चीज में मतलब लाइक फेसबुक गेमिंग क्या है अपने क्रिएटर्स पे पर्सनली वर्क मतलब पर्सनली ध्यान देता है कि हाँ ये हमारा क्रिएटर है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए रिगार्डिंग लाइव स्ट्रीमिंग सेटिंग्स वगैरह पे, या मतलब हमें कभी कुछ वीडियोस वगैरह में, तो इस चीजों में भी वो हमारी वर्क हमारे साथ मतलब हमारे पे ध्यान देते हैं. और हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए छोटे छोटे गिफ्ट्स हमारे पास गैजेट्स वगैरह भी आते हैं. लाइक अभी जो मैं हेडफोन आप मुझे देख रहे हो, ये हेडफोन मुझे फेसबुक गेमिंग की तरफ से मिला था. सो ऐसे बहुत सारे गैजेट्स आते रहते हैं मेरे पास, तो मुझे और ज्यादा एनर्जी मिलती है. भले ही कुछ भी हो, आपको एक छोटा सा गिफ्ट दे दिया जाता है कि आपने ये काम किया बहुत अच्छा लगा, उसके लिए आपके पास ये गिफ्ट. सो यू विल नोटिस भले ही वो छोटे में नहीं बचपन में कि क्लास में फर्स्ट आएंगे तो 1 पेंसिल मिलेगा Right. न्यू, तो वो पेंसिल में वो शकला का बुम बुम वाला कैप रहता था. सो ये उस शकला का बुम बुम के कैप के लिए हमें फर्स्ट आना मजा आता था करने. लाइक सो वो छोटे छोटे से गिफ्ट्स होते हैं ना. मैंने अभी कार परचेज किया अपने लिए, तो एक जो कार ली, Congratulations. थैंक यू. तो उसके पीछे मैंने अपना फेसबुक गेमिंग का जो मुझे स्टिकर मिला था मैंने वो चिपका दिया. भाई बोलता है खराब हो जाएगा, मैं कहा नहीं मैं इसको सेलो टेप से ऐसे पिन करता हूँ. I'm sure Facebook आपको और stickers भेज देगा. ऑब्वियसली नहीं भेजेगा, मैं इधर से मेल कर दूंगी. Before I toss this over to Kankana, Aparna, I forgot to ask you completely. ये गेमिंग स्ट्रीमिंग के पहले क्या प्लान था करियर? मेरा स्ट्रीमिंग के पहले करियर ये था कि मैं हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में मेनली गर्ल्स के लिए कुछ 2-4 चीजें होती है. लाइक आप टीचर बन सकते हो, आप डॉक्टर बन सकते हो, गर्ल्स के लिए स्पेशली. एंड कोई या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब आप चूज कर सकते हो. तो ये 3 ऐसे ऑप्शंस थे हमारे पास जो आपको या बैंकिंग वगैरह लाइक. तो मैं वैसे मुझे टीचर नहीं बनना था बट मैंने थोड़ा सा टीचिंग की है. और उसके बाद मतलब मैं बैंक की प्रिपरेशन कर रही थी. लाइक एसबीआई में एग्जाम दिया. रिजर्व बैंक में कुछ 0.25 मार्क्स से मेरा रिजर्व बैंक का क्वालिफाई होते होते रह गया था. तो उसका ही फ्रस्ट्रेशन था जिसकी वजह से मैं आपके साथ हूँ. जो 0.25 वाला था उसका ही फ्रस्ट्रेशन, मतलब 3 दिन लिटरली मैंने रोया था, खाना नहीं खाया था. ऐसा मतलब बहुत सो वो फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आज हम 2.6 मिलियन फॉलोवर्स के साथ आपके सामने. बहुत ही बढ़िया. मतलब ये स्टोरी पे एक बननी चाहिए बायोपिक. ठीक है, मैं गेमिंग स्ट्रीमर बनना चाहती हूँ. बिल्कुल जबरदस्त स्टोरी है यार. मतलब ऑब्वियसली बैंक पीओ की एग्जाम अपनी जगह सही है, बट 2.5 मिलियन फॉलोअर्स भी अपनी जगह सही बात है. ये सर दुख जाता था 3 बजे 4 बजे तक सुबह तक पढ़ कर कि ये है. अभी उसमें इतना ज्यादा स्ट्रेस था. मुझे अभी भी पता है, मैं अभी भी मतलब कोई आता है मेरे पास, मैं रीजनिंग मुझे बहुत अच्छी पसंद थी ना सब में, तो मैं रीजनिंग अभी भी सबको पढ़ा सकती हूँ. मैं वो नहीं भूली हूँ, बाकी सब तो भूल गई हूँ, कुछ नहीं याद है. जबरदस्त. मतलब आई विल ट्यून इनटू द नेक्स्ट रॉकस्ट्रीम लाइव सेशन एंड आस्क यू फॉर रीजनिंग क्वेश्चंस. ये तो मैं करने वाला हूँ बस नीचे. If A is equal to this and B is equal to this, then अरे ये मेरी चैट में भी होता है. लोगों को पता है कि एनी को क्वेश्चन का आंसर देना का बड़ा मजा आता है, तो दे विल आस्क. एक बंदर था वो 2 मीटर इतने मिनट में चढ़ रहा है, फिर तो 30 मिनट का वो 30 मीटर्स का पेड़ है तो वो कितने मिनट में चढ़ेगा. लाइक ऐसे क्वेश्चन मेरे से पूछते रहते हैं.
जबरदस्त। ऐसे ये तो चलते मतलब रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल साइड हसल है ये आपकी 2.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स को थोड़ा थोड़ा अब उनका भी रीजनिंग स्कोर बढ़ना चाहिए। Let me toss this over to Kankana. Kankana, how has Facebook helped you? What do you look at Facebook for? How they help you build this community? So before Facebook, I think I did like a 6 months or 3 month journey on YouTube. That was also Mhm. like a group collaboration thing. So Mhm. it was never my own page. But I started properly on Facebook itself. And when I started, I did not expect that much. But of course, I streamed daily, like 3 hours a day. At least I used to do 3 hours a day. And I think Facebook has helped me massively. I can't thank enough because, like I said, with a single mother, you have to think about your own expenses as well. To some point, I have to think about my expenses, and if I can pay some of my bills, then it's a Mhm. great relief for her. So I think in that sense, Facebook has helped me quite a lot, be it monetization, in-stream ads, stars, donations, subscriptions, all those stuffs have, like, it really helped me to save up money, buy my own PC, pay my own bills, pay for my tuition fees for my MBA course that I'm doing. And I'm doing it by myself. I'm paying all the fees and exam fees. wonderful. Yeah. So that is one thing that I'm really grateful for, and it's because of Facebook I can do that. So definitely, huge shout out to Facebook. You I have love more them. option. You have more option with Facebook. Like Facebook come with brands also. Yeah. They will give you some amount for promoting their Yeah, products like and all. brand collaboration and stuff. तो वो सब कुछ भी है. बिल्कुल. I want to ask you about that. That was my second question actually. Both of you said that अभी जैसे अपर्णा आपके लिए आपके भाई आपको हेल्प कर रहे हैं. Mr. Q said you and your friends are doing stuff together. How have you considered getting a manager or being part of a network of creators where there's more professional support? Is that something that you guys have considered? Not till now, because I'll tell you, when I first started streaming, I did not know much about how to set up OBS or all those stuff. You need a webcam and you need all the other gadgets that you need. And my friend, like Mithuman Wangpotre, he is such a great help. And his brother Sashang Bhai, they were the guys who built the path for me to walk in. They helped me in every single thing that I needed. Like, if I don't know how to set up OBS, they will do it for me. It's like the smallest things that they do. So even when I have to take a decision or something, I always consult them, and they give the best suggestions. Of course, they're like, it's up to you, but I can tell you the pros and cons. Of course, when they tell me that, I'm like, oh, I need to think about it. So that is the reason. And they're like my family, they live near us. So I think that is the reason I have not thought about like a proper org. But if my page goes tremendously and it's hard for me to manage, then of course I'll think about it. What about you? ये question बता दो फिर से. Question. सवाल ये है कि तीतर के दो आगे. आगे तीतर के दो पीछे. नहीं, the question is about getting management, right? Getting, just say MythPat, for example, works with Pranav and Oprah, right? Yeah. Have you guys considered Yeah. getting, getting yourself a full-time manager or someone like that? नहीं, अभी मेरा मैनेजर बगल में बैठा है, पर मुझे किसी मैनेजर की अभी तो जरूरत नहीं पड़ी है. एंड ऑब्वियसली फेसबुक हमारे लिए एक CSP वर्क करती है. लाइक am I right? They manage most of the things. Like मतलब like हमें अगर इतनी सी भी कुछ हेल्प चाहिए, मतलब लाइक एडिटिंग से रिलेटेड, या हमें कुछ लाइव स्ट्रीम में सेटिंग का कुछ नहीं समझ आ रहा है, दे विल हेल्प अस. दे विल मतलब वो हमारे लिए थंबनेल्स से लेकर वो हमारी हर छोटी से छोटी चीज पे वर्क करते हैं. और अगर हमारे पेज पे जैसे कुछ ऐसा होता है कि कुछ ऐसी एक्टिविटी हमें नजर आती है कि लाइक, तो उसके लिए भी हमारी एसपी फेसबुक से बात करती है, फिर फेसबुक उसको शॉर्ट आउट करके हमारे पास लेकर आते हैं. या कुछ भी ऐसा लगेगा कि लाइक पेज, जिससे लाइक सबसे बड़ा हमारे साथ एक कंसर्न होता है, एक टेंशन दिन में रहती है कि पेज हैक हो जाए या डिलीट हो जाता है. सो इसके लिए भी हमारे CSP या फेसबुक गेमिंग
CSP को हमारे पास रहती है कि वो हमारी हर तरीके से मदद करे, तो वो हमें अवेयर करते रहते हैं कि किसी चीज पे, किसी लिंक पे या किसी चीज पे आपको क्लिक नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास कंटिन्यूअसली, मैं अगर अपना मेल बॉक्स चेक करती हूँ ना, तो दिन में कम से कम 20 से 30 मेल ऐसे आते हैं जो कि सेफ नहीं होते हैं। Yeah. और कई एक बार तो ऐसा हुआ था कि मेरे पास एक लिंक आया और ऑब्वियसली वो इतना ऐसा था ना, मुझे लगा ही नहीं था कि वो मतलब कुछ ऐसे ही फेक होगा। और मैंने उस पे मैंने जो दूसरा प्लेटफॉर्म है उसके उस पे से मैंने क्लिक कर दिया और मेरा वो गया, बट फिर मिल गया मुझे, रिकवर मिल गया, हो गया वो। तो इन सब चीजों पे भी हमारी सीएसपी हमारे साथ रहती है और वक्त पूरा करती है, और टाइम टू टाइम हमें अवेयर करती रहती है कि हमें आगे क्या करना है, क्या हमारे लिए सही है। लाइक आप जैसे वुमेन डे की बात कर रहे हो, अभी वुमेन डे में कुछ स्पेशल होगा तो वो मुझे आप पहले से अवेयर करेंगे कि हम ये करने वाले हैं, आप लोगों को ये करना है। और फेसबुक गेमिंग, मतलब ये सारी चीजें हमारे साथ होती रहती है। और अगर हम फेसबुक गेमिंग की से बात करते हैं ना, तो लाइक जैसे फेसबुक गेमिंग भी हमको एज अ फ्रेंड ट्रीट करती है। लाइक जो आपने वो देखा होगा जो फिल्टर्स होते हैं ना, तो मेरे पास एक फिल्टर आया कि मेरे पास ऐसा आया कि एनी ये फिल्टर है, जस्ट ट्राई एंड आप मुझे इसको ट्राई करके डाउन अपलोड मत करिएगा, जस्ट मुझे एक वीडियो दे दो। लाइक मैं ऐसे बैठी थी घर पे नॉर्मल सी, मेरे को ट्राई करके देना है कौन सा, आई वाज लाइक मैंने उसको ट्राई किया फिल्टर को और मैंने उनको दे दिया, उन्होंने फेसबुक गेमिंग ऑफिशियल पेज पे अपलोड कर दिया। अभी जब मेरे फ्रेंड्स लोगों ने देखा, वो मुझे भेज रहे हैं, मैं कह रही हाँ ये तो मैं हूँ। बाद में मैं देख रही हूँ, ओ भाई ये तो उधर किधर अपलोड किया। मैं उसको कॉल कर, भाई ऐसा कुछ हुआ कि पहले बोल देखा मुंह देखा तो ये सब भी कुछ ना कुछ मेरे साथ प्रैंक हो जाते हैं। अभी 26 जनवरी को मतलब उन्होंने जो फिल्टर क्रिएट किया था उसका भी आया मेरे पास, तो वो भी मेरा ऐसी, मतलब वो तो चलो मेरे को पहले से अब एक बार हो गया है ना, तो फिर नहीं ऐसे मतलब कुछ ना कुछ मजा आता है, ये समझ लो। I think we get that because we are Facebook partners. The partner tag gives us those perks, obviously, because Trinity Gaming, who is our CSP, वो लोग they continuously bring us opportunities, be it interviews like this one, or be it branding deals and all this stuff. So they obviously do those stuff. Plus, like she said, creatives में help करता है, thumbnails हो, video editing ho, there's always that team. So I think they have already they already do the most part. तो हम लोगों को फिर से सोचना नहीं पड़ता है that we need managers or to do it. They are already doing, and that is the org we are working with. So like Trinity Gaming, they're called as in. Shout out to Trinity Gaming India. Trinity Gaming India. Trinity Gaming India. Shout out to you. I will take 20 rupees for this mention. Jokes apart, guys, this is just such a fantastic conversation. And मतलब मैं आप लोगों की सराहना करना चाहूंगा इस बात से that you seem so grounded and you know what works for you, you know who are the people who have helped you get where you are, yet you seem so grounded, so real. It's such a fantastic conversation to have both of you here. Let me bring this episode around to a close by asking you, you are obviously both looked upon as yaar inke jaisa banna hai, you know, young girl and guy gamers I'm sure on your feeds want to be a Rogstream or want to be a Mystic Ignite. इस बात का कोई प्रेशर लगता है कभी? Obviously थोड़ा सा तो आपने अभी बोला तो अभी प्रेशर फील हो रहा है मैंने. Sorry, my intention was not to recreate the pressure, but to ask you about it, right? Because यार बहुत ही सिंपल सी बात बोलता हूँ मैं कि 2.6 million followers is not a joke. Right? It's not a joke. It's not a joke. It's a lot of influence. It's a lot of power. It's a lot of responsibility to say the right things, to influence the people the right way, to not present yourself. But कैसा होता है ये प्रेशर? कब पहली बार ऐसा लगा कि यार ये बहुत ज्यादा लोग हैं, इसका अब थोड़ा प्रेशर बनने लगा? So I think मैं जब से स्ट्रीमिंग करना शुरू किया, it's not about the influence. I think I always thought about what I put out there is gonna come back to me later or in some time. So I always thought about it, not to influence others or not to inspire others, but as a self-conscious human being, I think. So
because of that reason, I never say anything rude or anything that is going to hurt others in some sense. So I am always self-aware of that. And जब मेरा viewers and my followers increased, तब मैं I became more aware that yeah, there are young kids who also watches our stream. So you have to be very careful what you say out there because they are going to learn. Right. So I am really careful about it, and I have like school में पढ़ते हुए बच्चे जो लोग मेरे को देखते हैं like hi Mystic D, you know, I always say them, you don't need to watch my stream if you have exams because your education is your priority. You don't need Absolutely. to watch my stream. And मैं उसको रोज बोलती हूँ, तुम क्यों देख रहे हो मेरा स्ट्रीम? ठीक है 5 मिनट के लिए देखने आई हो to refresh your mind, it's fine, but study nicely, you know. And that's why I think they really love me and thinks of me as a, you know, elder sister. Because I am really strict with them when it comes to their future, because I don't want them to waste their life like that ना. मैं कुछ बोलूंगी rude and they will learn from it, and I don't encourage them to study and all this stuff. I don't want to do that. I want the best for them because they are also my viewers. I also care for them. I think, yeah, as a self-aware human being and an empathetic person, I'm like that only. No one will believe you're 23, 24 years old with the kind of maturity that you're just talking about these things, man. It's obviously something that a lot of creators should learn and imbibe. I just loved your answer. Yeah. Aparna, over to you. सेम लाइक मैं भी स्ट्रीम करती हूँ जब भी, तो मैं इस चीज का बहुत ध्यान रखती हूँ. वैसे मैं ज्यादातर मतलब मेरे साथ जो टीममेट्स है वो बॉयज है, और उनके साथ टंग स्लिप बहुत होती है. बॉयज को भी कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है. आई वाज लाइक मेरी फैमिली फ्रेंडली स्ट्रीम है, सो जस्ट शट योर माउथ. उस टाइम पे टेप लगा. अभी वो को स्ट्रीमर्स है मेरे, मतलब वो भी स्ट्रीम्स करते हैं जो मेरे साथ खेलते हैं. सो जब भी उनको कुछ ऐसा बोलना होता है दे विल माइक ऑफ एंड अपनी स्ट्रीम में कुछ भी बको, इधर हमारी स्ट्रीम में नहीं सुनना चाहिए. लाइक बिकॉज मेरा भी यही रहता है कि मेरे साथ कोई मतलब जो मैं जिनको जानती हूँ, लाइक 2-4 बच्चे हैं जैसे ईशान, निशांत, मैनी मोर, शशांक, ऐसे करके कई सारे बच्चे हैं जो आते हैं स्ट्रीम पे. सो मैं उनको भगा देती हूँ, भाई तुम पहले निकलो यहाँ से. वो मुझे ऐसे लिखेंगे, एनी कल मॉर्निंग मेरा स्ट्रीम है, मैं अभी आपका स्ट्रीम देखे बिना मुझे नींद नहीं आती है ना, तो मैं आ गया. मैंने कहा नहीं, चुपचाप सो जाओ. राइट. तो ये भी चीजें हैं. और कुछ मैं जैसे यहाँ पर कोशिश करती हूँ ना कि लोग चैट पे लाइक आप मतलब मैं यहाँ पे कंट्रोल कर रही हूँ कि मेरी टीममेट्स कुछ ऐसा नहीं बोले जो मेरे ऑडियंस को बुरा लगे. तो मेरी ऑडियंस में पेरेंट्स भी आते हैं. मतलब बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो स्ट्रीम देखते हैं जिनके 5 साल 6 साल के बच्चे हैं, तो वो मेरी स्ट्रीम उनको दिखाते हैं. और वो मैं ये कहूंगी कि ये एक इंडियन गेमिंग कम्युनिटी का फेस होने वाला है. शायद बहुत अच्छा जाने वाला है अगर फेसबुक इसी तरह से हमारे साथ वर्क करते रहेंगे तो बहुत अच्छा जाएगा. तो वो पेरेंट्स देखते हैं, वो अपने बच्चों को दिखा रहे हैं, इट मीन्स वो आगे गेमिंग को कुछ आगे देखना चाहते हैं ना. अभी अगर हम उनको ऐसा दिखाएंगे कि लाइक कुछ अब्यूजिव वर्ड्स यूज कर रहे हैं, या फिर हम कुछ ऐसा उनके बच्चों पे दिमाग पे नहीं जाएगा, तो वो भी मोटिवेट होते हैं कि हाँ हम अपने बच्चे को ये करा सकते हैं, ऐसा कुछ उनका फ्यूचर इस पे देख सकते हैं. क्योंकि हमारी गेमिंग का जो कम्युनिटी है वो अभी इंडिया में 4-5 साल पे ही स्टार्ट हुई है. इसके पहले हमारे इंडिया पे जब से पबजी आई थी तब से ही स्टार्ट हुई है. इसके पहले लोग नहीं जानते थे कि गेमिंग क्या है, स्ट्रीमिंग क्या है. सो मैं उन सब चीजों को ध्यान पे रखकर, एक आते हैं रोहित वर्मा, उनके 2 बच्चे हैं, किंजल एंड सेकंड वन मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है. तो वो उनकी बच्ची को जबरदस्ती कि एनी की स्ट्रीम का टाइम है, चलो फोन ऑन करो. लाइक मतलब इतने वो बच्चे बात करने आते हैं डिस्कॉर्ड में, अपने मतलब उनके पेरेंट्स लेकर आते हैं बात करने. मतलब अच्छा लगता है. तो इन चीजों का भी ध्यान रखते हैं. और मैं कमेंट्स पे भी ध्यान रखती हूँ. मैंने अपने चैट मतलब ऐसा होता है कि अगर आप मॉनिटर नहीं रख रहे हो तो आप कुछ वर्ड्स को होल्ड कर सकते हो कि उन वर्ड्स को वो ब्लॉक कर देगा, आप चैट में दिखेगा. तो मैं उन चीजों का भी ध्यान रखती हूँ. तो हमारी चैट में भी ऐसा कुछ आता है, वो आई कैन रीड दोस कमेंट्स, बट या वो तो others. सो ऐसा है, तो उससे चैट में भी इशू नहीं होता है. तो मतलब ये सब चीजें ध्यान में रखकर स्ट्रीम करना ऑब्वियसली. और 2.6 का लिटरली प्रेशर तो होता है
कि अगर मैं ऐसे गेम खेल रही हूँ, अगर मेरा एक गेम खराब हुआ, 2 गेम खराब हुआ, तीसरा गेम होता है, आई वाज लाइक भाई अब रहने दो, हम नहीं खेल रहे हैं, थोड़ी देर बाद आती दिमाग खराब हो गया है इतना मैच, क्योंकि लोग आपको अच्छे एक तरीके से देखना चाहते हैं, नॉट लाइक कि आप ऐसे कुछ भी खेल रहे हो। सो ऐसा ये सब चीजें बहुत ध्यान रखनी पड़ती है कि जो ऑडियंस है उसको सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि लाइक इतना बड़ा पेज है और आप इस पे अगर कुछ भी ऐसा करते हैं तो हर एक पोस्ट पे, इवन हर आप कोई पोस्ट भी अपलोड करो तो उस पे भी कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी को हर्ट करे। सो ये सब चीजें बहुत ध्यान देनी पड़ती है। Love it, yeah. कोई भी एक लाइक आपने फोटोज अपलोड करी या फिर आपने एक वीडियो अपलोड किया तो उन सब चीजों को ध्यान में रखकर, और मैं तो ऑब्वियसली मैं अपनी गेम जो इंडिया है, अपने इंडिया की जो सोच है, मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा बात करती हूँ क्योंकि मेरे दादाजी कमांडर थे इंडियन आर्मी में। सो मैं उनको थोड़ा उनसे इंस्पायर रहती हूँ, तो मैं मेरे इंडिया के लिए बहुत ज्यादा थोड़ा सोचती हूँ। तो लाइक मेरे चैट पे आते हैं यार एनी पबजी बैन हो गया, कि तुम ही लोगों की वजह से हुआ है। बिकॉज गेम की तरह देखकर आगे बढ़ो, उसको ये मत समझो Life अभी मत बना इसने दो यार। या इसको तुमने मार दिया, इसने तुमको मार दिया, अभी देखो बेटा इसको मारते हैं, है ये। मैं तो गेम को गेम, और मैं मेरे जितने भी लोग मेरे साथ खेलते हैं ना, मैं उनको बोल देती हूँ अगर जिसको ये करना है भाई निकलो। मैं फटाक मेरे पास, मैं लिटरली 3v4 खेल लूंगी, 2v4 खेल लूंगी, पर मुझे ये जो करता है मैं उसको भगा देती हूँ। मुझे ये नहीं चाहिए, और मेरी चैट में भी ये नहीं चाहिए। मेरी चैट में पूरे हर कंट्री से लोग आकर मुझे देखते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और बहुत सारे कनाडा वगैरह से मुझे लोग देख रहे हैं। उनके ऊपर क्या क्या इंप्रेशन पड़ रहा है, हमारी कम्युनिटी क्या दिखा रही है, हम क्या दिखा रहे हैं लोगों को, दूर देश पे हम अपनी इंडिया की यही इमेज बना रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इमेज अच्छी बने, तो मैं इस चीज के लिए भी मोटिवेट करती रहती हूँ, तो लोग थोड़ा सा और मुझे मोटिवेट करते हैं, हाँ नहीं यार तुम बिल्कुल सही हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वे लोग मेरे से डिस्कॉर्ड में भी बात करते हैं ना, कि मेरे जो ऑडियंस है, जो मेरे फैंस है वो, तो मैं उनको इस सब चीजों के लिए बहुत अवेयर करती हूँ कि कोई गर्ल अगर स्ट्रीम कर रही है तो उसको मोटिवेट करो। मोटिवेट करो, एग्जैक्टली। उसको ये नहीं आप वहां पे जाके आप कुछ भी कमेंट कर रहे हो, तुम नूब हो, तुम लड़की हो, लड़कियों से गेम नहीं होता, ये कमेंट की जगह अगर आप उसको 2 वर्ड अच्छे लिख दोगे ना, तो वो मोटिवेट होगी, वो मोटिवेट होगी। अभी आप घर पे बोलते हो ना कि माँ घर को बनाती है, तो अगर एक लड़की अगर गेम में आ रही है तो वो क्या आपके देश को नहीं दिखा रही है? बहुत बढ़िया। तो इस चीज को आप आगे बढ़ाओ। इस चीज को हम कहते हैं ऐसी चीजों की क्लिप्स निकालकर, जो हम लोग बोलते हैं ऐसी चीजों की क्लिप निकालकर आप शेयर करो। वो चीज का क्लिप निकाल के शेयर मत करो जो और लोग देखेंगे, बिकॉज बुरी चीज ज्यादा जल्दी से फैलती है और अच्छी चीज बहुत धीमे धीमे। बिल्कुल। तो हमेशा हमेशा उस हर चीज की मैं तो बहुत, सच बताऊं विनीत, मैं बहुत पॉजिटिव सोचती हूँ। बहुत, मेरा जो काम नहीं होता है, मेरे को पता है नहीं हो सकता है, फिर भी मैं पॉजिटिव सोचती हूँ कि नहीं ये नहीं होगा, तो मैं पॉजिटिव ही सोचूंगी मेरे से ये कैसे नहीं होगा, मुझे करना है और करके रहना है। मतलब उस पॉजिटिव हूँ तो हूँ। तो मैं हर एक टॉपिक, लाइक मैं आपसे बात करूँ, हर इंसान पे कुछ कमी कुछ ऐसा होता है तो भी मैं उसको पॉजिटिव लेती हूँ कि अगर वो गलत है तो क्यों गलत है, उसका कुछ पॉजिटिव पॉइंट होगा इस चीज को लेकर। तो ऐसे हर किसी को पॉजिटिव अगर हम दिखाएंगे, लाइक हम बहुत सारी चीजें देखते हैं कि ये चीज ऐसी हुई तो उस पे विवाद हो रहे हैं, अरे उसका पॉजिटिव भी देखो। निगेटिव तो ऑब्वियसली हर किसी का होगा, हम स्ट्रीमिंग करते हैं, ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सा ये भी होता है कि हमें ज्यादा देर हेडफोन्स यूज नहीं करने हैं, तो इसका लिमिट है ना कि हम इतने टाइम ये हेडफोन्स यूज कर सकते हैं, तो हमें कोई बॉडी में हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो वैसे ही अगर हम अपनी गेमिंग कम्युनिटी को स्प्रेड और अपना वाइड बना सकते हैं, इंडिया को एक न्यू फेस देना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया भी क्रिकेट में भी अच्छी टॉप पे रहती है, हॉकी पे भी रहती है, बहुत सारे गेम्स पे हम आगे बढ़ रहे हैं, गर्ल्स क्रिकेट खेल रही वहां पर वो इतनी हाईलाइट है, तो हम ई स्पोर्ट्स में लड़कियों को क्यों आगे नहीं ले जा सकते हैं? बिल्कुल। तो इस सब चीजों को हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी ये सुन रहा है प्लीज इस चीज को आप समझो, मेरी बात को मत शेयर करो, खुद से लोगों को ये बात पहुंचाओ, मत किसी को क्रेडिट मत दो, खुद से ये बात लोगों तक पहुंचाओ कि यार वो बहुत अच्छी है। आप अगर उसको अच्छी बोलोगे ना, ऑब्वियसली वो जाके जाकर वहां पर अच्छी है लिखेगा और वो दूसरे को ये बताएगा कि हाँ वो बंदी अच्छी है। एक पॉजिटिविटी का साइकिल बनेगा। एक पॉजिटिविटी का साइकिल बनेगा। अगर तुमने ये बोल दिया कि यार वो ऐसा है, खेल वेल पाती नहीं है, उससे नहीं हो पाता यार, 2 मैच देखा वो नॉक पड़ी थी, अभी उसको उस जगह पे लिख दो जाके, यार उस जगह पे क्या कोई वायरल होता है ये। तो ऐसा कुछ करके आप आगे बढ़ो, आप आगे, हम आगे बढ़ेंगे ना, तो आप बोलते हो ना माँ
तो आगे इन फ्यूचर हम सब वहीं पर आ जाते हैं तो हम देश बनाने में हम भी काम आएंगे आगे। जबरदस्त। सो इस चीज को ये समझ के चलो ना कि हम नए हैं तो क्या हुआ, हम क्या कर नहीं सकते। बहुत ही बढ़िया। So, बहुत ही ये very, चीज very पॉजिटिव noble लेके thought. जाओ। Beautiful thought and very well said. Anything you want to add to that, Mystic? I think small good gestures goes a long way, because if you say something nice and motivate someone, I think they will keep that in mind. You know, तब जब भी negatives कुछ आते हैं, फिर भी you'll think about it. You know, there might be 10 people who might be negative towards you, but you'll think about those 5 people who are always there and positive. You know, definitely think about that. And I would really encourage everyone to motivate female creators, female gamers, and gaming streamers. So there are girls who are coming up and they are very new to this whole environment and this whole scenario, and I think they are also very unaware, and they are also very like kya ho raha hai? They are also very sensitive towards the new things that they are experiencing. तो थोड़ा सा अगर आप अच्छे से बोल दोगे, कोई बात नहीं, of course nobody is born pro, right? They will learn the game. If they are pro, sorry for interruption, if they are pro, so क्या वो हर मैच विन करते हैं या वो कभी नॉक नहीं होते? Of course. Sometime happens with everyone. किसी के साथ भी हो सकता है यार। आप लोग अगर चेस फॉलो करते हो तो मतलब प्रज्ञानंदा ने अभी मैग्नस कार्लसन को हरा दिया, वर्ल्ड नंबर 1 वर्सेस अ 13-year-old boy. So Exactly. nobody is perfect. Even if you're the proest pro in the world, आप फिर भी you can be a nice person. You can Nice person. Yeah, absolutely. I think I've had a blast talking to you guys. I am so delighted to see how accomplished, how mature, how deeply committed to what you guys do you are. I want to bring this conversation to a close by asking you for one thing, right? My question to you is: 5 years later, आप लोग क्या करें? What is the plan? What is the ambition? Now, you're both successful creators. You're both, you have crossed that. जो वो कहते हैं ना लक्ष्मण रेखा जो होती है कि यार मैं क्रिएटर था, अब मैं क्रिएटर हूं जो पैसे भी बनाता है. Being a creator serves my livelihood. What next? What are you building for in the next maybe 3 years, 5 years? और मतलब बोल भी सकते हो, सोचा नहीं है, बहुत खुश हैं हम लोग, गेमिंग करना है, मैं इसमें बहुत खुश हूं, ये भी बोल सकते हो. वो तो है ही, but I think I would like to spread some positivity and definitely encourage new female creators. I think I would like to work towards that goal. So of course more recognition would help, because then my influence would be bigger. And definitely I want to work towards something related to women, and definitely Something empowering related them. to mystic. Something Mysterious. related to me. So magical. Yeah, something magical also. Positivity is magical. Let's be honest. Yeah. Absolutely. So, Positivity is indeed magical. yeah. So yeah, I would like to spread positivity, more love towards the world, because the world needs love and healing, obviously. So yeah, I would love to do that. Beautiful. And you, Barbara? अभी मैं अगर बात करूं तो लिटरली अभी बहुत आगे तो आ गए हैं, जहां सोचा भी नहीं था वहां पर आ गए हैं, लेकिन अभी मुझे वहां पर जाना है जहां पर एक हम गेमर है, मैं हूँ या मिस्टिक है या बहुत सारी और गर्ल्स जो वर्क कर रही हैं. तो मैं जैसे एक कहते हैं ना कि ये गेम कुछ फीमेल, हमेशा गेम जब नाम लिया जाता है तो मेल का नाम ऐड किया जाता है, ये फलाना ठिकाना, मतलब जो भी बोल दो उनको, XYZ किसी का भी नाम. सो ऐसा तो उस जगह पर मैं चाहती हूँ एक बार ऐसा हो कि किसी भी गेम के साथ एक वुमेन का भी नाम किया जाए. तो मैं कुछ ऐसा बनाना चाहती हूँ, मुझे कोई चांद पे नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बस इतना चाहिए कि जिस रिस्पेक्ट से एक मेल को गेमर बोला जाता है उसी रिस्पेक्ट से एक फीमेल को भी बोला जाना चाहिए. तो मैं उस जगह पर जाना चाहती हूँ कि एक जगह गेम पर, एक जगह मैं खड़ी हूँ, एक जगह मेल क्रिएटर खड़ा हूँ, सेम. और इंशाल्लाह वो दिन बहुत जल्दी आएगा. सो बस मुझे बस उस जगह पर जाना है, बाकी ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, माँ है, बाप है, फॉलोवर्स है. तो उस जगह पर मुझे जाना है कि इससे क्या है, मैं सिर्फ एक सीधी भाषा में है कि इक्वालिटी. आई वांट टू सी इक्वालिटी इन माय इंडिया.
Beautiful. On that note, we will bring this episode to a close. It has been absolutely wonderful talking to the two of you. I mean, I consider myself to be young at heart, even though I'm slightly old. But getting to know the insides of streaming from you, how you guys planned it, and the fact that ye 2.6 million followers, ye sare followers have not gone to your head. Your feet are firmly planted on the ground. You are very real people. You're not cosplay girls, so you're not, unattainable game streaming boys jo gali de rahe hain aur masti kar rahe hain. You are here for your fans, and it's such a heartwarming feeling to have creators जो अपने fans के बारे में इतना care करते हैं, इतना सोचते भी हैं. I hope you had fun. Of course, I had a blast. Great. Thank you so much for joining me on this episode of Storytellers and Storysellers. Thank you for sharing all your insights और मेरे साथ इतनी सारी बात करने के लिए, and keep up the good work that you guys are doing. And shout out for Facebook Gaming also, obviously. Always, not that Facebook needs shout outs from me, but shout out to Facebook Gaming and my friend Mark. Hi Mark. Thank you so Hi, much Mark. once again. Yeah, see, I know he's going to watch this. I'm telling you, he's going to listen. Hi, Mars. फिर तुझे देना चाहिए. Let's do it. That's it on this wonderful episode of Storytellers and Storysellers. You were listening to me talking to Rogstream, Aparna, and Mystic Ignite Konkana about their girl gamer creator journeys. I wish you both all the very best. I hope you take over the world of streaming very, very soon, even more than you are right now. That's it on this episode. Thank you for tuning in. This is Vineet Kanabar saying goodbye. Bye. Bye. Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Storytellers and Storysellers, Vineet talks to legendary singer Usha Uttap and writer Shrishti Jha, who authored her biography. The conversation ranges across a wide variety of topics, from becoming a music icon to favorite musical partners in the Indian musical industry, and a whole lot more. On Press Decode, the host takes stock of Russia's invasion of Ukraine. On Postcards from Nowhere, Utsav tells us a story that connects coconuts, the Cold War, and nuclear fusion. And finally, do join Kavita and myself as we celebrate 7 years of IVM podcasts on the 900th episode of Cyrus Says. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you enjoyed this show or any of our shows for that matter, please do tell a friend. Word of mouth really does help us. And also, please, a rating if you could. That is also extremely helpful to us. And remember, we're also on YouTube. You can check out ivmpodcast.com/YouTube to get a list of the different channels that we operate on YouTube. And finally, we'd like to thank our sponsors this week: SBI Life Insurance, Bank of Baroda, India Water Portal, and Max Life Insurance. Thank you so much for making this possible. We know you love fast food, Fast fashion, faster payment. lightning fast internet speed. Then why not fast information? On Think Fast, where we discuss the latest developments in the world of technology, business, marketing, pop culture. With a side of sarcasm and my dad jokes, not just mine. Not mine, Varun. My jokes are funny. So join me, guys, the funnier one, Suchita Salvan, co-founder of LBB. And me, Varun Dugirala, the co-founder of The Glitch, as we think fast only on the IVM network. Fresh episodes out every Monday. On the IVM app, website, or wherever you get your podcast from.